अखिल भारतीय धान का आदिवासी समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री रवि बोस के नेतृत्व में श्री गंगानगर की सभी मंडियों ने धान का समाज के जाति प्रमाण पत्र बनवाने में आ रही रुकावट पर अपना रोष दिखाने के लिए 20 फरवरी 2023 को श्री गंगानगर की सभी अनाज मंडियों में आंदोलन करते हुए बंद का आयोजन किया। इस आंदोलन की शुरुआत श्री गंगानगर की मंडी में आयोजित एक जनसभा से हुई। जनसभा में किसानों सहित सरदार मनिंदर सिंह मान, व्यापार मंडल अध्यक्ष श्री धर्मवीर डुडेजा, कच्ची आढ़त संघ के अध्यक्ष श्री कुलदीप केसरिया ने भी धान का समाज को अपना समर्थन दिया। सही मैंने ਤੁਸੀਂ अगर इस लड़ाई देखो, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ एक गल होर कहना चाहना है, ਜਿਹੜਾ बाबा अंबेडकर ਸੀ ना, ਤੁਹਾਨੂੰ पता है ਉਹ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ 7.5 ਕਰੋੜ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਉਹ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮਗਰ ਉਸ ਵੇਖ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਹਾਲਾਤ, ਨੇਤਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੈਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਬੇਬੇ ਇਹ ਬੰਦ ਮਾਰਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ ਕੇ ਰੰਡੀ ਕਿਹਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਭਰਾਵਾ ਮਾਰਾ ਜਾਊਗਾ, ਦੱਸਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਪ੍ਰੈਸ ਲਵਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ, ਜਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਆਇਆ ਨਨਕਾਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਬੰਬੇ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਦੋਂ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਲੱਗਿਆ ਸੀ। ਸਕੂਲ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਖਰਚਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਆਉਣ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਬੋਲਿਆ ਮੈਂ, ਰਿਕਾਰਡ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਹਿਮ ਚ ਹੋਵੇ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਬੁੱਕ ਪਈ ਹੈ, ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ, ਉਹਦੀ ਚਿੱਠੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਧੰਨਵਾਦ ਦਿੱਤਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਤੋਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਊਚ ਨੀਚ ਦਾ ਸਾਰਾ ਲੇਬਲ ਖਤਮ ਕਰਤਾ ਸੀ। मेरी ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਕੱਠੇ ਰਹੋ, ਇਕੱਠੇ ਰਹੋਗੇ ਤਾਂ ਤਾਕਤ ਬੜੀ ਰਹੂਗੀ ਤੇ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਪੂਰੇ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਫੈਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲਓਗੇ। ਕੋਈ ਵਰਗ ਤੁਹਾਤੋਂ ਅਛੂਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਰ ਵਰਗ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੋਣਾ ਪਊਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਡਾਂਗ ਫੜ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਹੋ ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਅੱਗੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਖ ਅਸੀਂ ਠੋਕਾਂਗੇ ਅਗਲੇ ਦੇ। ਇਹਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਆਇਆ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਊਚ ਨੀਚ ਨਿਕਲੀ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। हमारे बीच मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲੜ ਪਿਓ ਕਿਤੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਡੀਓ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਮਾਰਨੀ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੀਂਦਾ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਸਹੀ ਮਾਇਨੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਇਸ ਲੜਾਈ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਅੰਬੇਡਕਰ ਸੀ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ 7.5 ਕਰੋੜ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਉਹ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।
मगर उस वक्त दे लोग जेड़े सी हालात नेता किसी का मैं नाम नहीं लेना चाहता वो किसी ने कहा सी ना बेबे ये बंद मारदा तो नहीं पुत के रंडी की जीती है तो सही गल दसदा कि भरावा मारा जाऊंगा दसदा नहीं है बाद दे विच बॉम्बे दे विच उस नूं प्रिंटिंग प्रेस लवा के दिती जिन्ना खर्चा आया ननकाना गुरुद्वारा लाहौर दे उन्होंने ते बॉम्बे दी सिख संगतां ने उन्होंने पैसा दिता और अंबेडकर साहब नूं उत्थे लग्या भी सिखा ने बना के दिता उदों 40 लाख रुपया लग्या सी स्कूल की इमारत बना के दिती ਉਹਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਖਰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਆਉਣ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਬੋਲਿਆ ਮੈਂ ਰਿਕਾਰਡ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਹਿਮ ਚ ਹੋਵੇ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਬੁੱਕ ਪਈ ਹੈ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਉਹਦੀ ਚਿੱਠੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਧੰਨਵਾਦ ਦਿੱਤਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਤੋਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਊਚ ਨੀਚ ਦਾ ਸਾਰਾ ਲੇਬਲ ਖਤਮ ਕਰਤਾ ਸੀ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਕੱਠੇ ਰਹੋ इकट्ठे रहोगे तो ताकत बड़ी रहूगी तो ये आंदोलन पूरे राजस्थान फैल सकता है तुम थोड़ी जी समझदारी तो कम लोगे कोई वर्ग तो अछूता नहीं है हर वर्ग थोड़े नाल है तो अपने आप होना पऊगा बिल्कुल थोड़े नाल है डांस पढ़ के जिस तरीके ना कहो मैं तैयार अगे होवांगे पहला लक्ष्य असीं ठोकांगे अगले दे इन्हें कहंदा आया मेरे मुंह चो कोई ऊंच नीच निकली हो तो मैं क्षमा का जाचक वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की हमारे बीच धन्यवाद साथियों। सबसे पहले मैं आप लोगों से यही विनती करूंगा कि अपना जो समाज आज जिस मुद्दे के लिए यहाँ इकट्ठा हुआ है अपनी एकता दिखाएं और जो कई सालों से हम इस समस्या से जूझ रहे हैं शायद आज हमारे बीच विधायक महोदय जी बैठे हुए हैं ये भी शायद प्रयास करें कि हमारे इतने सालों से समस्या चली आ रही है उसका निपटारा हो। तो साथियों आज हमें यहाँ कोई खेल तमाशा करने के लिए नहीं इकट्ठे हुए हैं हम अपनी बरसों से पीड़ा जो झेल रहे हैं उसका निपटारा चाहते हैं कि हमें हमारे आने वाले बच्चों को जो उनका भविष्य है खास तौर से उनको ये कह सके कि आपके उज्जवल भविष्य के लिए हमने कितनी लड़ाइयां लड़ी। इसलिए साथियों सबसे पहले मैं तो यही कहूंगा कि आज अपना गंगानगर और हनुमानगढ़ का मजदूर साथी और कर्मचारी भाई पार्षद जितने भी हो अपना योगदान दें इस आहुति में और हम गर्व से कह सके अपने आने वाली पीढ़ी को कि हमने इस आंदोलन में भाग लिया था। इसलिए साथियों सबसे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि हमारी समस्या क्या है। कई फाइलों में या कई सरकारी मुलाजिमों से तो ये कहते सुना है कि हनुमानगढ़ और गंगानगर में धानका जाति रहती ही नहीं। क्यों हम इतने वर्षों से यहाँ रह रहे हैं। आज अनाज मंडी में प्रत्येक दुकान के ऊपर जो मार्केट कमेटी सरकारी दफ्तर है वहां की जो पर्ची कटती है वो आज की तो नहीं है वो कई सालों से चली आ रही है। उस पर्ची के अंदर हमारा धान का नाम लिखा हुआ है भी यहाँ धान का जाति रहती है और उस पर्ची में हमारी मजदूरी कटती है और नीचे लिखा जाता है भी धान के की कितनी मजदूरी बनी है और वो पर्ची बकायदा सरकारी दफ्तर में हर जगह जाती है। लेकिन कई फाइलों में हमें हनुमानगढ़ और राजस्थान में धान का जाति मानते ही नहीं है। कहते हैं कि धान का जाति होती ही नहीं है। इलेक्शन के वक्त हमें बरगलाया जाता है वोट लिए जाते हैं लेकिन नई जो समस्या आती है उस पर कोई आवाज नहीं उठाता। इसलिए साथियों मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं
थोड़ी सी कविता कह लो, गीत कह लो, उसके माध्यम से उसमें आप मेरा साथ ताली बजा कर दीजिएगा। है प्रीत जहाँ की रीत सदा, है प्रीत जहाँ की रीत सदा, मैं गीत वहाँ के गा रहा हूँ। मंडी का रहने वाला हूँ, मंडी की बात लाता हूँ। है प्रीत जहाँ की रीत सदा, मैं गीत वहाँ के गाता हूँ। मंडी का रहने वाला हूँ, मंडी की बात सुनाता हूँ। हम रोज यहाँ पर मरते हैं, कोई सुनता नहीं हमारी है। हम रोज यहाँ पर मरते हैं, कोई सुनता नहीं हमारी है। हमने अपना हक मान लिया, एक यही तो गलती हमारी है। किसके आगे फरियाद कर हम, किसके बातों दुख कहे, ये बात मैं तुम्हें बताता हूँ। मंडी का रहने वाला हूँ, मंडी की बात सुनाता हूँ। साथियों, मैं तो यही आपसे कहने आया हूँ कि जहाँ तक हो सके अपनी एकता का बल दिखाओ। और वो कहते हैं कोई भी काम हो, चाहे किसी काम को लगा लो, कोई काम को लगा लो, लेकिन शुरुआत एक व्यक्ति से ही होती है। एक व्यक्ति अगर शुरुआत करता है ना, तो फिर काफिला अपने आप जुड़ जाता है। आज जिस तरह से कई सालों से हमारा भाई संजय करणपुर में भूख हड़ताल पर बैठा, किस लिए बैठा कि जाति प्रमाण पत्र नहीं है। हमारे आने वाले बच्चों को स्कूलों में सर्टिफिकेट मांगते हैं, लेकिन सर्टिफिकेट लाए कहां से? सरकार ने बंद कर रखे हैं। एक मामूली से डंडे के लिए मान लो, या हमें धान का और धानक अलग अलग बांटने के लिए, लेकिन एक शुरुआत हुई है। वो कहते हैं ना, अगर आज सब, हर आदमी, हर समाज का आदमी, हर दान का ये कहते, उसके अंदर एक मैं होनी चाहिए। वो मैं क्या है? वो मैं ये होनी चाहिए कि हाँ, धरने पर मैं बैठूंगा। अगर वो हर व्यक्ति ये सोचे कि पहल मैं करूंगा, तो अपने ऐसे नौबत नहीं आएगी। इसलिए आज अगर उसने पहल की है, तो प्रत्येक हनुमानगढ़ और गंगानगर जिले में जितने भी व्यक्ति हैं समाज के, वो पहले अंदर ये कहे कि मैं बैठूंगा धरने पर, मैं अगर अनशन करूंगा, तो अपने शायद ऐसी समस्या कभी नौबत नहीं आएगी। वो हमारे समाज को गुमराह किया गया था। अब मैं पूरी डिटेल बताता हूं कि आज से 1998 के बाद हमारे धान का समाज के एक एक जाति प्रमाण पत्र पूरे राजस्थान में बन रहे थे। और जो 2019 को मीनाओं के जनप्रतिनिधियों के दबाव से, एक विशेष जाति के दबाव से हमारे जाति को गुमराह कर दिया गया। पहले दानक और दानका का विवाद करवा रहे थे हमारे साथ, और अब दानका और दानका नलवाड़ा का एक आदेश चिट्ठी निकालकर हमें विवाद में डाल दिया गया, जो कि मीना और मीना एक ही जाति थी और वो अलग अलग जातियों पर उनको एक मान लिया गया। मीना और मीना, जिनकी स्पेलिंग भी अलग अलग थी और हिंदी में उच्चारण भी अलग अलग थे, और हमारे समाज के स्पेलिंग एक थी, लेकिन नैनल और नैनल को विवाद में डालकर हमें गुमराह कर हमारे समाज को अंधेर काल में डाल दिया गया। हमारे समाज के
हमारे सरकार पर दबाव डाला गया। हमारे समाज के पूरे राजस्थान के जनप्रतिनिधि, पूरे सरकार को दबाव डाला गया। राज्य सरकार अशोक गहलोत ने कमेटी गठित की थी, उस कमेटी में हमारे समाज के जनप्रतिनिधियों को बुलाया गया। अगस्त 2022 को अभी तक उस कमेटी ने कोई निर्णय नहीं दिया कि भी तुम्हारी समाज धानक और दानका या दानका अरे वाला एक ही है। लेकिन आज तक हमारे समाज का एक एक जाति प्रमाण पत्र के लिए हमारे समाज के जनप्रतिनिधि जो छात्र भटक रहे हैं। मैं सभी समाज से निवेदन करूंगा कि आज माननीय जिला कलेक्टर को पूरा तरीके से ज्ञापन देंगे और सचिन पायलट को यह अवगत कराएंगे कि हमारा समाज अगर पूरे राजस्थान के अंदर एक हो गया तो ईंट से ईंट पत्थर बजा देंगे और पूरे राजस्थान की धानका समाज की जितनी मंडी है वो सामूहिक हड़ताल पर उतरने के लिए सभी तैयार रहेंगे। धन्यवाद। एसटी का जाति प्रमाण पत्र जारी करो। हमारे साथी करोपुर से हमारे बीच में भारी संख्या में पहुंचे हैं। जिला धान मंडी मजदूर संघ की ओर से आपका कोटि कोटि धन्यवाद। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई रवि बोस की तरफ से भी आपका कोटि कोटि धन्यवाद। जो हमारे साथी हनुमानगढ़ से भी आए हुए हैं उनका भी कोटि कोटि धन्यवाद। जिले के लोग थैंक यू गौड़ साहब, थैंक यू। लेकिन गौड़ साहब ये हमारे साथ लगकर और आप माननीय मुख्यमंत्री जी के बहुत निजी और बहुत करीबी दोस्त हो, लेकिन ये डंडा लगवा दोगे तो आपका हम आसान बंद रहेंगे जब तक आप रहोगे और जब तक हम आपके साथ रहेंगे। ये भी हम लिख के दे सकते हैं आपको, लेकिन ये डंडा लगवा दो साहब, हमें ऐसे ना रुलना पड़े। हम आपके सेवक हैं, आपके साथ रहे हैं, लेकिन परम आदरणीय सिर्फ यही मानते हैं कि बाप का जाति प्रमाण पत्र एसटी का, बेटे का एसटी का, लेकिन पोते का जाति प्रमाण पत्र नहीं बन रहा। क्या कारण रहा ऐसा जो नहीं बन रहा? क्योंकि बीएड, एमए, बीए में फाइनल में सिलेक्शन हो जाता है। जब हम छात्रवृत्ति के लिए बच्चे फार्म भरते हैं तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है कि वो छात्रवृत्ति के लिए ऑफलाइन वाला सर्टिफिकेट जमा कराए तो छात्रवृत्ति नहीं देती अपनी सरकार। परम आदरणीय विधायक महोदय, हमारी सरकार हमें छात्रवृत्ति नहीं देती है। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप हमारी मांगे मना दो। हम कांग्रेसी हैं, कांग्रेसी रहना चाहते हैं, हमें मजबूर मत करो किसी और पार्टी का झंडा चकने के लिए। धन्यवाद। जय। बहुत ही बढ़िया विचार रखे भाई पवन सुरलिया ने अपने समाज के प्रति। और इसी कड़ी में एक सेकंड इसी कड़ी में हमारे बीच में व्यापार मंडल से हमारे धानका समाज को समर्थन देने आए हैं दी गंगानगर जनरल से एसोसिएशन के अध्यक्ष धर्मवीर जी डुडेजा। हमारा पूरा धानक समाज इनके समाज रहेगा, इनकी बातों पे रहेगा। श्री गंगानगर मंडी में आयोजित जनसभा में अखिल भारतीय धानका आदिवासी समाज के संयोजक श्री राजेंद्र खर्रा, क्षेत्रीय विधायक श्री राजकुमार गौड़ ने सभा को संबोधित किया। श्री राजेंद्र खर्रा ने धानका समाज की समस्याओं की ओर ध्यान दिलाते हुए श्री राजकुमार गौड़ को बताया कि धानका जाति को राजस्थान प्रशासन द्वारा उच्चारण के नाम पर परेशान किया जा रहा है, जबकि अंग्रेजी वर्जन में दोनों को एक ही जैसा लिखा जाता है, जिसके कारण धानका समाज के लाखों युवाओं का भविष्य अंधरामय होने लगा है। क्षेत्रीय विधायक श्री राजकुमार गौड़ ने सभी को विश्वास दिलाया कि वह जल्द ही राजस्थान विधानसभा में इस मामले को उठाकर इसका समाधान करने का प्रयास करेंगे। श्री रवि बोस ने सभी कार्यकर्ताओं से इस आंदोलन में धैर्य बनाए रखने की अपील करते हुए कहा कि हम अब पीछे नहीं हटेंगे। राजस्थान सरकार को 9 अगस्त 2019 की चिट्ठी को वापस लेना होगा और धानका को एक ही मानना होगा, नहीं तो यह आंदोलन हमें राजस्थान की सभी मंडियों में फैलाना पड़ेगा। इस अवसर पर जिला मजदूर संघ के जिला अध्यक्ष श्री किशोरीलाल सिवान, न्यू धान मंडी के प्रधान श्री नंदकिशोर, पार्षद श्री धर्मेंद्र मौर्य, पूर्व प्रधान श्री मक्खनलाल मावर, श्री पवन सुरलिया, श्री आकाश डाबला, श्री विनोद मावर सहित अनेक वक्ताओं ने संबोधित किया।
इस अवसर पर श्री गंगानगर मंडी से एक रैली की शुरुआत में सभी धानका समाज के लोग न्यू धान मंडी से शिव चौक, सुखाड़िया सर्किल, बीरबल चौक, फिर मटका चौक, भगत सिंह चौक, कलेक्टर परिसर से होते हुए महाराजा गंगा सिंह चौक से बाबा भीमराव अंबेडकर चौक पर समाप्त हुई। धानका समाज के सैकड़ों की संख्या में लोग प्रशासन की मनमानी के खिलाफ नारे लगाए हुए जाति प्रमाण पत्र बनाने की मांग कर रहे थे। इस अवसर पर श्री रवि बोस के नेतृत्व में राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री श्री सचिन पायलट को एक ज्ञापन देकर धानका समाज की समस्याओं से अवगत कराया गया। फर्जी चिट्ठी वापिस लो, फर्जी चिट्ठी वापिस लो। गाम गाम डाणी डाणी एक आवाज, गाम गाम डाणी डाणी एक आवाज, गाम गाम डाणी डाणी एक आवाज। अशोक गहलोत, अशोक गहलोत 2019 की चिट्ठी वापिस लो, वापिस लो, वापिस लो। फर्जी चिट्ठी वापिस लो, वापिस लो, वापिस लो। फर्जी चिट्ठी वापिस लो, वापिस लो, वापिस लो। अशोक गहलोत मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अशोक गहलोत मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। फर्जी सरकार वापिस लो, वापिस लो, वापिस लो। फर्जी चिट्ठी 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 वापिस लो, वापिस लो, वापिस लो। धानका समाज जिंदाबाद, धानका समाज जिंदाबाद। फर्जी चिट्ठी वापिस लो, फर्जी चिट्ठी वापिस लो, वापिस लो, वापिस लो। फर्जी चिट्ठी वापिस लो, वापिस लो, वापिस लो। गलत सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद।